Good morning, everyone. I, Dinesh Pratap Singh, Assistant Professor in EC at Oriental Institute of Science and Technology, Bhopal. Welcome you all. Today's topic is cell coverage for signal and traffic. This topic is very interesting for cellular mobile communication subject. General introduction for cell coverage. Obtaining the mobile point-to-point model, which is also called Lee model, propagation over water or flat open area, foliage loss, propagation in near and distance, long distance propagation, path loss from a point to point prediction model, cell site antenna heads and signal coverage cells, मोबाइल टू मोबाइल प्रोपगेशन। ये इतने टॉपिक्स का हम स्टडी करेंगे सेल कवरेज फॉर सिग्नल एंड ट्रैफिक में। तो सेल कवरेज के लिए इतने सारे पैरामीटर्स, इतने सारे फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ता है। सेल कवरेज कैन बी बेस्ड ऑन सिग्नल कवरेज और ऑन ट्रैफिक कवरेज। सिग्नल coverage can be predicted by coverage prediction models and usually applied to a startup system. This task is to cover the whole area with a minimum number of cell sites. Since 100% cell coverage of an area is not possible, the cell sites must be engineered so that the holes are located in the no traffic locations. The prediction model is a point to point model which is discussed by us. We have to examine the service area as occurring in one of the following environments. देखिए, ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर से भी सिग्नल लॉसेस होते हैं और नेचुरल टेरेन से भी। तो ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर्स में ओपन एरिया, सब अर्बन एरिया, उनमें जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स वगैरह होते हैं, और नेचुरल टेरेन में ओवर फ्लैट टेरेन, ओवर हिली टेरेन। हेलो, नहीं आ रहे हम। कौन सी मैडम? तो आप आ जाओ। हाँ, मैं नहीं आ रहा अभी। लेक्चर बना रहा। तो नेचुरल टेरेन्स में ओवर फ्लैट टेरेन, ओवर हिली टेरेन, ओवर वाटर, थ्रू फॉलेज एरिया जहाँ पे ट्रीज वगैरह होते हैं, वर्सेस जंगल एरिया। तो ये नेचुरल टेरेन्स हैं। तो अब हम ग्राउंड इंसिडेंट एंगल एंड ग्राउंड एलिवेशन एंगल की बात करते हैं। जब कोई मोबाइल सब्सक्राइबर मोबिलिटी में होता है, मतलब मूव कर रहा होता है, जैसे कोई कार में आप कॉल कर रहे हैं, सपोज किसी डिस्टेंस पे एंगल फाई बन रहा है और फिर कार मूव करके और आगे आ गई तो वो एंगल थीटा बन रहा है। तो थीटा इज़ द इंसिडेंट एंगल, फाई इज़ द एलिवेशन एंगल। कोऑर्डिनेट स्केच इन ए फ्लैट टेरेन। फ्लैट टेरेन के लिए ये फिगर जो दिखाया गया है, ये फ्लैट या प्लेन मैदान के लिए, ग्राउंड के लिए। और ये एंगल कहाँ से बनता है? जो बेस स्टेशन ट्रांसमीटर होता है, BTS, उससे जो आपकी मोबाइल यूनिट है, कार है, व्हीकल है, इससे जो एंगल बनता है। सपोज एक डिस्टेंस पे एंगल फाई बन रहा है और दूसरे डिस्टेंस पे थीटा बन रहा है। The ground incident angle theta is the angle of wave arrival incidentally pointing to the ground. Ground reflection angle and reflection point, the ground elevation angle psi is the angle of wave arrival at the mobile unit. इस फिगर में दिखाया गया है बेस स्टेशन BTS की हाइट है 100 मीटर और जो मोबाइल है वो 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। मोबाइल यूनिट जो व्हीकल है
और वो कुछ हाइट पे ट्रैवल कर रही है, हाइट हिली एरिया। तो हाइट सपोज 3 मीटर पे एक एंगल बन रहा है, इसको साई बोल रहे हैं। और जैसे फिर हाइट 2 पे आ रही है व्हीकल, तो एंगल बन रहा है थीटा। तो जैसे जैसे कार ऊपर जाएगी बेस स्टेशन ट्रांसमीटर से उसकी हाइट कम होती जाएगी, क्योंकि हाइट, तो ये फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं। द मोबाइल पॉइंट टू पॉइंट मॉडल, दिस इज कॉल्ड ली मॉडल। This mobile point-to-point model is obtained in 3 steps: generate a standard condition, obtain an area-to-area prediction model, obtain a mobile point-to-point model using the area-to-area model as a base. A standard condition: to generate a standard condition and provide correction factors, we have used the standard conditions shown on the left side and the correction factors on the right side of table, generating a standard condition. At the base station, transmitted power PT is equal to 10 watt. 10 watt means 40 dBm. Alpha 1 is equal to 10 log P1 dash upon 10. Correction factors. Antenna height H1 is equal to 100 feet, near about 30 meter. अगर ट्रांसमिटेड पावर 10 वाट है 40 dBm, तो करेक्शन फैक्टर अल्फ़ा 1 इक्वल 10 लॉग पी टी डैश अपॉन 10 लेंगे। और एंटीना हाइट अगर 100 फीट या 30 मीटर है, तो अल्फ़ा 2 जो करेक्शन फैक्टर होगा वो 20 लॉग H1 डैश अपॉन H1। H1 डैश जो इनिशियल हाइट है और H1 जो एंटीना हाइट है। एंटीना गेन जी टी इक्वल टू 6 dB पर डाईपोल। अगर एंटेना गेन 6 dB पर डाईपोल है, तो करेक्शन फैक्टर अल्फा 3 इक्वल जी टी डैश माइनस 6। एट द मोबाइल यूनिट एंटेना हाइट H2 इक्वल टू 10 फीट। अगर जो हमारी मोबाइल व्हीकल है अगर 10 फीट हाइट पे है, नियर अबाउट 3 मीटर, तो करेक्शन फैक्टर अल्फा 4 दैट इज इक्वल्स टू 10 लॉग H2 डैश अपॉन H2। H2 इज height traveled by the mobile unit. Antenna gain GM is equal to 0 dB per dipole। मोबाइल यूनिट के लिए एंटीना गेन 0 कंसीडर किया गया, तो अल्फा 5 इज इक्वल टू जी एम डैश। ऑल द पैरामीटर्स विद प्राइम्स आर द न्यू कंडीशंस। दैट इज द एंड ऑफ टॉपिक। थैंक यू सो मच।